वगैरह कितने होंगे, क्या उसका वो हिसाब कर लेते हैं ये इसको, बता पहले रहे ये आज का लेक्चर हो जाए क्या होगा सर इसका? सॉरी ओके सर। okay guys, today we are going to talk about the powers, executive powers of United States of America. Means we are going to talk about the presidential power, the president of United States of America. इसके बारे में बात करेंगे कि how the Constitution of United States of America is giving power to the chief executive of state. तो इस चीज के ऊपर देखें, up till now whatever we have learned with reference to how Constitution was being made. ये चीजें हमने डिस्कस की थी, और फिर हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो फेडरल सिस्टम किस किस्म का है, इस चीज के ऊपर लास्ट क्लास के अंदर बात किया था। और उससे पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो किस किस्म की लिमिटेशंस लगाता है, कौन कौन सी चीजें हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Today we are going to talk about the presidential powers. अच्छा, इसका भी एक छोटा सा 1-2-3 मिनट का बैकग्राउंड we have to have in our mind कि you know कि after the constitutional convention the federating states, they were having their thorough discussion what would be the powers of states, the federating states हैं, how executive would be working, बल्कि executive की बात अभी नहीं, how Congress was working, how Congress would be working, what would be the functions of Congress, how the lower house of Congress and the upper house of Congress would be sharing powers. So इन चीजों के ऊपर they got their detailed discussions, उन्होंने इसके ऊपर detailed discussions की, लेकिन very surprisingly they were almost silent on the powers of executive. इसकी रीजंस पता नहीं क्या हैं, इसकी रीजंस तो शायद 2-3 जगहों पे जो मैंने पढ़ा है उसकी वजह ये थी कि एक जो जॉर्ज वाशिंगटन था, he was very powerful personality at that time, and many people they were of the opinion that since he would be the president of United States of America, so since he is very wise person and he is very powerful person, so when he would be becoming the president of United States of America, so he himself will be trying to complete or give the proper powers to the slot of presidency in United States of America. And the states which were willing to come up with some assumptions or propositions के या उनकी ये जो assumptions थी कि the president slot के पास ये power होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, whatever their suggestions were there, they were not having the dare to speak in front of the George Washington because वो बड़ा कहते हैं कि powerful बंदा था, बहुत powerful आदमी था, और इस वजह से everybody was having सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मतलब सही आ रही सर। यार ये क्या बात है। एंड क्या वजह थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंशियल पावर या एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। इनिशियली इट वाज रिटन वेरी इन फ्यू वर्ड्स, लेकिन उसकी वजह ये थी कि एवरीबॉडी वाज हैविंग द आइडिया कि जॉर्ज वाशिंगटन वुड बी प्रेसिडेंट सिंस ही इज वेरी वाइज पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, सो ही ये जो प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन अगर ही वुड बी giving the powers to the slot of presidency in the United States of America, and everybody was having reconciliation with his personality. इस वजह से only one statement, article जो 2 है of US Constitution है, उसका जो clause 1 है वो ये कहता है कि executive power would be vested in the president of United States of America. क्या होगा जी? Kindly increase the volume. वॉल्यूम इंक्रीज करो, बच्चा कह रहा है। वॉल्यूम तो मेरा पूरा है यार। अच्छा चलो दोबारा देखता हूँ इसको। आपके वॉल्यूम इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उसको अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना। अच्छा ठीक है। अच्छा चले, आपकी आवाज वैसे बड़ी डमी पुत्र खराब आ रही है कि सही आ रही है? सर अब ठीक आ रही है, पहले डिस्टॉर्शन हो रही थी। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा इधर तो सही आ रही है फिलहाल सर। हाँ चलें। तो क्या है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड जो आर्टिकल है, इट इज सेकंड आर्टिकल एंड सेक्शन 1 directly deals with the executive power, and only one statement is being written over there
कि executive power would be vested in the president of United States of America. And what would be the pros and cons of this power, how the president would be utilizing that power? Nothing is written. In Constitutional Convention, they have their thorough discussions on the role of Congress, on the role of Senate, on the role of House of Representatives, how and how in what way the federating states, they would be enjoying power vis-a-vis the federation, the central government. But when it comes to matter of the president, जब president की बात होती है, only one statement is being written. ओनली एक स्टेटमेंट रिटर्न है. इसकी वजह क्या है? बड़ी हेस्टली इस चीज को ये लिखा गया था बिल्कुल एंड पर कि प्रेसिडेंशियल पावर वुड बी गिवन, एग्जीक्यूटिव पावर वुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट. और जो आर्टिकल 2 का सेक्शन 2 है उसके अंदर लिखा हुआ है द कमांडर इन चीफ ऑफ पावर, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा. तो मेरे कहने का मतलब, व्हाई आई एम मेकिंग दिस प्रीएम्बल, आई एम मेकिंग दिस प्रीएम्बल जस्ट टू से दैट in very history process the powers of presidents, they were being decided. बहुत hastily power of president को decide किया गया था. Thorough discussions were not being made. ये बनाई नहीं गई थी. As I told you कि उसकी शायद the personality of George Washington was the main factor. इस वजह से most of the federating states they were silent. वो silent थी इस मामले के ऊपर. टैमी, आपने 2 emails खोली हुई हैं अपनी? इसे आपकी? अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं. तो ये मैंने कहा. अच्छा, अब देखें पावर्स की. उसको मैंने ये बताया आपको कि ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिस्कस के प्रेसिडेंट को डिस्कस किया गया विद इन कॉन्स्टिट्यूशन. अब याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो प्रेसिडेंट है, ही इज द मोस्ट पावरफुल फिगर इन यूएस एंड द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट इन द होल वर्ल्ड. ये एक कहते हैं, पीपल दे बिलीव दैट इट इज जस्ट अ सेरेमोनियल स्टेटमेंट. ये एक सेरेमोनियल स्टेटमेंट है, ऐसे ही कह दिया जा रहा है कि ये है. व्हेन दे आर गोइंग टू कैटेगराइज व्हाट काइंड ऑफ पावर्स they are being shared or enjoyed by the presidents of other countries vis-a-vis the president of United States of America, तो वो दुनिया के अंदर 4th कैटेगरी का पावरफुल प्रेसिडेंट आता है. इसके अलावा भी दुनिया की बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट हैं. अमेरिका 4th कैटेगरी में आता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट. तो लेकिन एक जनरल सेरेमोनियल स्टेटमेंट ये दी जाती है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट. वो उसकी कुछ और वजूहात हैं कि उसके पास मिलिट्री बहुत पावरफुल है, उसके रिसोर्सेज वगैरह. अब वो, लेकिन अब देखें, बहैसियत प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसके पास तो जस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज एंजॉयिंग the executive power, लेकिन he is the most important source of legislative suggestion. कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, he used to suggest to Congress that these are the areas on which we have to make legislation. He is the most powerful legislative suggestion है for the legislative process in the United States of America. एक ये बात. दूसरी बात ये कि he is already the most powerful executive यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, लेकिन in addition to that इसके पास he is the ultimate figure with reference to the foreign relations of United States of America. He is the ultimate figure, the only sole person. There are few check and balances with reference to the role of Congress over president, लेकिन still he is the all in all when it comes a matter of foreign policy. इस वजह से लोग ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, इट इज एंजॉयिंग 2 काइंड्स ऑफ पावर्स. एक है फॉर्मल और कुछ है इनफॉर्मल. फॉर्मल्स में जो है विच आर बीइंग गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इनफॉर्मल जो है वो है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद बनाई हैं, इनफॉर्मल पावर्स. मेरी बात समझ आ रही है बच्चों कि मैं क्या बात कह रहा हूं? कि एक तो वो पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू गिव हिम, जो उसके पास पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर्मल है, रिटन कोडिफाइड है. एंड देयर आर सम अदर पावर्स जिनको इनफॉर्मल पावर्स भी कहते हैं, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट ने खुद बनाई है. इट इज in very real sense the presidency is what a president makes it. यानी कि उसकी वो पावर जो इनफॉर्मल है, not written, not codified in the constitution, but the presidency is going to make for president. खुद उसके अहदे ने जो बनाई है इसके लिए. इस वजह से अच्छा,
बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू डिस्कस के व्हाट आर द पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट्स, उससे पहले हमने देखना है कि हाउ अ प्रेसिडेंट इज बेसिकली बीइंग इलेक्टेड। प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट हैज टू बी ऑफ 35 ईयर्स एज, उसको होना चाहिए 35 ईयर्स का होना चाहिए, और उसके बाद उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेचुरली बॉर्न होना चाहिए। एंड इफ ही इज नॉट नेचुरली बॉर्न, ही इज बॉर्न अब्रॉड, अगर वो अब्रॉड बॉर्न हुआ है, देन हिज पेरेंट्स मस्ट बी बिलोंगिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके सिटीजन्स होने चाहिए। एंड व्हेन, जब वो बॉर्न अब्रॉड हुआ है बट ही इज विलिंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है, तो उसको उसके लिए एटलीस्ट ही मस्ट बी in United States of America for almost at least rather 14 years, उसको 14 years के लिए United States of America में continuous presence show करनी है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का? सर ये रिपीट कर दें काइंडली। एक वो है जो 35 years एज होनी चाहिए इसकी मिनिमम। दूसरी बात ये है कि ही शुड बी नेचुरली बॉर्न, वो नेचुरली बॉर्न होना चाहिए विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। And if he is born abroad, अगर वो abroad पैदा हुआ है, then his parents must be, इसके जो parents हैं वो citizens होने चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। And when a person is willing to become a president of United States of America, so within last 14 years, he must show that he has been in United States of America for at least consecutive 14 years. उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एटलीस्ट 14 इयर्स के लिए कंटिन्यूअस प्रेजेंस शो करनी है। यू गेट माय आइडिया? तो वो ये बंदा है जो बन सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अगर इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन मिसिंग है, दैट पर्सन कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बन सकता। अच्छा, उसके बाद with reference to the election of United States of the president of United States of America, the role of electoral college is very important. आप लोगों को पता है कांग्रेस इज हैविंग टोटल 535 representatives, 100 of Senate and 535 of the House of Representatives. House of Representatives क्या, और ये मैंने आपको बता दिया है कि how these seats they are further being divided. ये कैसे डिवाइड किया गया है, कंसेंसस होता है और उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ये किया जाता है और वो दी जाती हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किस स्टेट की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस के अंदर, कौन बताएगा? कैलिफोर्निया। हाँ, कितनी है टोटल? टोटल कितनी है कैलिफोर्निया की? कौन बताएगा? साइलेंट सर उस दिन हम एब्सेंट थे सर। ना मड़ा 53 रिप्रेजेंटेटिव्स, 53 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अच्छा, एनीवे गाइस, खैर ये तो जो चीजें हमने दिखी हैं लास्ट क्लास से। अच्छा, अब इलेक्टोरल कॉलेज का क्या है? देखें, इलेक्टोरल कॉलेज के उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जितने कांग्रेस के हैं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इज हैविंग, वो ये पूरी स्टेट नहीं है, इट इज जस्ट बीइंग कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज इज बेसिकली बीइंग कंपोज ऑफ 538 रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस, ये जो कांग्रेस इज हैविंग 535 रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दिस इज हाउ इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 538 रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनता है। बेटा यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है? सर ये रिपीट करिएगा या जो भी बोला। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोगों ने रिस्पॉन्स करना है। टोटल मेंबरशिप कितनी है कांग्रेस की? 535 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और 100 सेनेट। नहीं, 435 हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एंड 100 जो कांग्रेस। तो टोटल मिला के 535 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज इज बेसिकली बीइंग कंपोज ऑफ 538 रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन हाउस ऑफ जो कांग्रेस है उसके अंदर टोटल 535 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इज नॉट अ फुल फ्लेज स्टेट, लेकिन स्टिल दैट डिस्ट्रिक्ट जो है इज गोइंग टू गिव 3 रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर देयर आर टोटल 538 रिप्रेजेंटेटिव्स।
ये बात क्लियर है? अच्छा, अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज का, क्यों इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत पेश आई, उसकी वजह ये थी कि some of the states of United States of America, they are very concentrated in terms of population. कुछ स्टेट्स जैसे कि ये जो अभी आप स्टेट का नाम ले रहे थे, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसा कि पाकिस्तान में पंजाब जो है वो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 60% है। तो इसी तरीके से सम स्टेट्स विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर हैविंग वेरी कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के लिए एक जो फ्रेमर्स में से तो नहीं था, लेकिन एक बंदा था डेविड बियरले। डेविड बियरले ने कॉन्सेप्ट, ही वाज बिलोंगिंग फ्रॉम न्यू जर्सी। डेविड बियरले, बेटा आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ओके। डेविड बियरले केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। उसकी वजह ये क्या कहती थी, इलेक्टोरल कॉलेज एंश्योर्स कोहेसिवनेस इन द यूएस फेडरेशन। अगर इलेक्टोरल कॉलेज ना होता एंड देयर यूज्ड टू बी द सेम प्रिंसिपल एज वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, अगर हमारे मुल्क का जैसा प्रिंसिपल होता तो पूरे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो पंजाब डिटरमिन करता। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी पॉलिटिक्स 5 या 6 स्टेट्स आउट ऑफ 50 स्टेट्स डिटरमिन करती। ये चीज ये रिक्वायर नहीं थी, ये डिजायरेबल नहीं थी। इसी वजह से द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज लिया गया इन ऑर्डर टू हैव कोहेसिवनेस। और इसका नतीजा क्या निकला, a presidential candidate which is going to have the most popular vote is not supposed to be the president of United States of America. जैसे कि अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट सबसे ज्यादा लिए, लेकिन she was still unable to become the president क्योंकि उसको इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स नहीं मिले थे। इस वजह से पॉपुलर वोट तो ले गई, जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर स्टेट्स थी जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उन्होंने तो ओवरवेलमिंगली हिलरी क्लिंटन को वोट दिया, लेकिन वो वोट जो पॉपुलर वोट हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं हो सके इनटू द इलेक्टोरल कॉलेज। इस वजह से इस चीज को रोकने के लिए मेजॉरिटी मस्ट नॉट बी रूलिंग इन द यूएस फेडरेशन, कोहेसिवनेस, यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी रूलिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन फेडरेशन। बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो सर, ये जो सर आपने क्लिंटन से बोला है ना सर, बीच में आपकी आवाज मिस होती है सर अक्सर जुमले। यार तेरा नेट का कनेक्शन ही सही नहीं है, बाकी सब लोगों को आ रही है, वो सही करो तुम। सर मुझे भी नहीं आ रही सर, इस बार कट रही थी सर। अच्छा चलो जी, कट रही थी। मैं दोबारा बताता हूँ इलेक्टोरल कॉलेज क्यों रिक्वायर किया गया। हु वाज द पर्सन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज? डेविड बियरले। ही वाज बिलोंगिंग फ्रॉम न्यू जर्सी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलाका न्यू जर्सी से ये बिलोंग करता था। उसकी वजह ये थी कि सम ऑफ द स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर वेरी पॉपुलेटेड, वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, एंड इलेक्टोरल कॉलेज इस चीज को रोकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हु इज गोइंग टू विन ओवर फ्रॉम द स्टेट्स व्हिच आर हैविंग मोर पॉपुलेशन would not be in a position to determine the politics of United States of American Federation. In order to have the cohesiveness लाने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट लेकर आया। जैसा कि मैंने पाकिस्तान की मिसाल दी कि पंजाब के, सिंस पंजाब इज द मोस्ट populated province of Pakistan, is having the 60% population of the whole population, so it is written here, it has been demonstrated again and again, a candidate who is going to win over from Punjab is going to take over the whole country, पूरे मुल्क में वो रूल करता है। अमेरिका ने इस चीज को रोका और उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज लेकर आए जिससे उन्होंने इंश्योर किया कि देयर मस्ट बी कोहेसिवनेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर रूल नहीं करना चाहिए, लेकिन किसकी बुनियाद के ऊपर करना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है बेटा? तो अमेरिका का जो इलेक्शन है वो सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग हैं, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेनेट्स के और उसके, वो पहले इलेक्शन में सिलेक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट होते हैं। उसके बाद वो इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसके हक में वोट देते हैं, अच्छा ये एक बात याद रखिएगा, हमारे मुल्क के अंदर एक टर्मिनोलॉजी बड़ी मशहूर है जिसको हम कहते हैं लोटा। यार ये लोटा हो गया, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीते हैं
और फिर बाद में अपनी लॉयल्टी को स्विच ओवर कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है कि आपने एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीता और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ है कि आप अपनी लॉयल्टीज को स्विंग कर सकते हो। इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर अमेरिका के स्विंग स्टेट्स का किरदार बहुत अहम है। स्विंग स्टेट्स कौन सी होती हैं? जो अपनी जो लॉयल्टीज हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है कि उसके जो इलेक्टिबल्स हैं वो अपनी जो लॉयल्टीज हैं उनको स्विंग कर सकते हैं। जिस पार्टी के सीट से इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, जरूरी नहीं है कि ये उसी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसको वोट करेंगे, वो किसी और को भी वोट कर सकते हैं। बच्चों मेरी बात समझ आइए? यस सर। ओके, तो हमारे मुल्क में जैसे कि लोटा क्रेसी को बड़ा बदतरीन समझा जाता है, अमेरिका के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। उनकी जो फेडरेटिंग स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो उनको अलाउ करते हैं कि यू कैन स्विंग योर लॉयल्टीज। इसलिए अमेरिका के इलेक्शंस में हमेशा स्विंग स्टेट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और आपको पता है जी जी प्रॉपर्ली पार्टी चेंज करना और किसी और कैंडिडेट को वोट करना, ये चीजें डिफरेंट नहीं है? बहुत अच्छी बात की आपने, कि आप अपनी रुकनीयत ही चेंज कर लो। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जरूरी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट इलेक्शन होता है उसके अंदर ये हमने वही हिस्सा रखा हुआ है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेनेट के अंदर आप वोट करते हो छुपाकर। उससे क्या होता है, जो बलूचिस्तान है उसके जो टोटल सीट्स हैं वो अगर 14 है, तो जो जनरल इलेक्शन पे जो इलेक्ट होते हैं सेनेट के लिए, तो उसके अंदर हर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी अरबों के अंदर बोली लगती है। और हमने इस चीज को खत्म करने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोशिश की। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं कि इफ यू आर नॉट रिकंसाइलिंग, अगर आप रिकंसाइल नहीं कर रहे हो विद द चार्टर ऑन द डिमांड, या जो उसका जो चार्टर है जो वो लेकर आए हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर, अगर उनसे रिकंसाइल नहीं करते आप किसी दूसरे बंदे को दे दो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं। लेकिन इसको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को बड़ा रेयरली देखा गया है कि जो फेथफुल नहीं होते वो अपनी पार्टी लॉयल्टी को चेंज करते हैं और वोट पार्टी की डिमांड के अगेंस्ट देते हैं अपना वोट। बहुत रेयरली देखा गया है, क्योंकि हमेशा जो पार्टीज हैं वो उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके ऊपर उनको बिलीव होता है कि ये डाई हार्ड सपोर्टर है हमारे, लॉयल है हमारे। लेकिन अमेरिका के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं 5-6 जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बिलोंग करती हैं और साउथ ईस्टर्न साइड के ऊपर जो है वो स्विंग स्टेट्स का किरदार बड़ा अदा करती हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है। तो आप ये जो कह रहे हो पाकिस्तान के अंदर जो आपने कहा था कि पार्टी चेंज करना और वोट पार्टी के, पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ी रिप्रेजेंट क्या है कि अगर आप अनएजुकेटेड हो लेकिन यू कैन बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर बिकॉज के वी बिलीव के योर लॉयल्टी इज द सुप्रीम थिंग। सो इज द केस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको मैंने शुरू में बताया था पैटर्नेज सिस्टम है, वहां पे पैटर्नेज सिस्टम है, उसके ऊपर देते हैं। लेकिन खैर वो भी अब चीजें खत्म होती जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई हैं। तो जब आपने पार्टी की डिमांड के ऊपर रिकंसाइल ही नहीं किया तो अल्टीमेटली पार्टी आपको पेनलाइज करती है, अमेरिका के अंदर भी करती हैं, आपको पेनलाइज करती हैं या आपको डिसीट किया जाता है जैसे पाकिस्तान में किया जाता है, उधर भी है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर यू आर नॉट रिकंसाइलिंग विद द पार्टी पॉलिसी तब पार्टी आपको पेनलाइज करेगी या आपको डिसीट कर देगी। उनको कुछ स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें उनको अवेलेबल हैं, वो करती हैं और कुछ नहीं करती, तो इसीलिए उनको स्विंग स्टेट कहते हैं। जो पेनलाइज नहीं करती तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स जो हैं वो उसकी पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं, और कुछ जो नहीं, जो पेनलाइज करती हैं वो फिर लेके चलते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है अमेरिका के अंदर ये ट्रेडिशन है कि वो ज्यादातर लोगों को अलाउ करते हैं कि इफ यू आर नॉट रिकंसाइलिंग विद योर ओन पार्टीज चार्टर देन यू कैन गिव द वोट टू योर ओपोनेंट, टू द ओपोनेंट ऑफ योर पार्टी, उसके कैंडिडेट को भी आप दे सकते हैं। खैर अच्छा, ये सारी चीजें। अच्छा, अब मैंने आपको एक जुमला बोला था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो पावर्स दी गई हैं वो दे आर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड, दे आर नॉट बीइंग एलैबोरेटेड। दो सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 2 जो है वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। लेकिन क्या कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकेम वेरी पावरफुल।
रीजन क्या हुई है? There are formal powers written codified, there are informal powers not written not codified, and what the presidency is going to make for president और president की practices से. इसके अलावा भी there are few other sources which made the powers of United States of America to the greater extent कि वो unaccountability के ऊपर चला गया, जिसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने लिख दिया 1 2 3 these are the powers. उसके बाद कांग्रेस ने कुछ लॉज पास किए हैं with reference to the public interest और पब्लिक पॉपुलर वोट के ऊपर जाके उसको बनाया गया, और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स उनको दी. तो सोर्सेज ऑफ, इफ एनीबॉडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, तो वो कैसे किन हाथों से मिला, क्योंकि वो तो एलैबोरेटेड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट एक्सेप्ट 1 2 3 थिंग्स. तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स दी, कुछ कांग्रेस के स्टैट्यूट्स ने दी, कुछ द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दी. कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा अकॉर्डिंग टू देयर ओन विजडम कि ये जो पर्सन है दिस पावर मस्ट बी बिलोंगिंग टू द यूएस प्रेसिडेंट. तो उसने डिसीजन करके जब ये डिस्प्यूट अराइज हुआ तो द लास्ट इंटरप्रिटेशन केम इन द फेवर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट. तो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट आल्सो थ्रू इट्स डिसीजन मेड यूएस प्रेसिडेंट वेरी पावरफुल. और देयर आर सम कन्वेंशंस, कुछ कन्वेंशंस भी हैं. इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि इट इज इन वेरी रियल सेंस द प्रेसिडेंसी इज व्हाट अ प्रेसिडेंट मेक्स इट, कि वो कैसा प्रेसिडेंट अपनी प्रैक्टिस से उन चीजों को बनाता है और पावर लेता चला गया. पावर अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजों के ऊपर वेरी कोडिफाइड है, पावर्स दी गई हैं, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है उसको, उसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फिर फाइनेंशियल पावर्स हैं, और इसके अलावा कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं. लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज वर्किंग अंडर सम चेक एंड बैलेंसेस. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है इज हैविंग सम एग्जीक्यूटिव पावर, सम फाइनेंशियल पावर, सम लेजिस्लेटिव पावर, सो देयर आर सम चेक एंड बैलेंसेस. अब हम उसको देखते हैं कि वो कौन सी पावर है एंड हाउ कांग्रेस इन रिटर्न इज गोइंग टू हैव सम चेक एंड बैलेंसेस ओवर द यूएस प्रेसिडेंट. अब इस चीज को हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं. फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देके बताता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी है, उसके अंदर आपके जो हैंड आउट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एनफोर्समेंट ऑफ लॉज है. एनफोर्समेंट ऑफ लॉज से मुराद ये है कि देयर आर सम लॉज व्हिच आर written in the constitution and there are some laws which the congress in return is going to make as per the popular demand of people बना. तो इन लॉज को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, उसका काम क्या है कि उसको enforce करना है. and if the laws they are not being enforced because of some reason, so according to the US constitution the US president can use force in shape of what you call it, के वो अपने एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को और जुडिशियल ऑर्गन्स को, उसके बाद सम डिपार्टमेंट से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बिलोंग करते हैं उनको यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू एनफोर्स द लॉज व्हिच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉज व्हिच आर बीइंग मेड बाय द यूएस कांग्रेस. एक तो वो है. और पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है. अब ये जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस एंड कंसेंट. It is basically based on the principle of advice and consent. आर्टिकल 2 ये कहता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट. कितनी है? अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास पावर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सी है. पहली पावर तो उसके पास है जो वो कैबिनेट हेड बनाता है, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट हेड उसके पास है. और उसके बाद जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव हैं, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये अपॉइंट करता है. उसके बाद इसके पास फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट करने की पावर है. लेकिन दीज पावर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस एंड कंसेंट. ये एडवाइस क्या है जी? यूएस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू गिव द एडवाइस के आई एम गोइंग टू अपॉइंट दीज पीपल, और फिर कांग्रेस उसको अपॉइंट करती है. अब ये कितने लोग होते हैं विद इन फेडरेशन? मोर देन 2000 पीपल की जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस एंड कंसेंट. 2000 से ज्यादा लोगों की और उसको ये देती है. उसके बाद इसके अलावा भी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर कोई सब्सिडियरी पावर्स भी हैं यूएस प्रेसिडेंट के पास, जिसको रिसेस अपॉइंटमेंट कहते हैं, सेनेटोरियल कर्टेसी कहते हैं. रिसेस अपॉइंटमेंट से मुराद ये है इफ द सेशन ऑफ द सेनेट इज नॉट इन प्रोग्रेस. हेलो
बच्चों आवाज आ रही है? सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? मैंने आपको बताया कि एनफोर्समेंट मींस द लॉज व्हिच आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज बीइंग मेड बाय कांग्रेस, यूएस प्रेसिडेंट इज सपोज्ड टू एनफोर्स देम थ्रू इट्स मशीनरी। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के थ्रू भी उनको। और दूसरा बात है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस एंड कंसेंट। एडवाइस और कंसेंट के ऊपर है। एडवाइस एडवाइस ये देता है और जो सेनेट है वो उसको कंसेंट देता है, यस क्या ये हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ सब्सिडरी पावर्स हैं ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसको रिसेस अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। अब ये जो रिसेस अपॉइंटमेंट ये है कि इफ द सेशन ऑफ सेनेट इज नॉट इन प्रोग्रेस, then for the time being, in order to get some help, US president under the constitution is having the right to appoint a person according to his discretion के ऊपर है। और अगर यूजुअली ये होता है कि सेनेट उसको अप्रूव कर देती है, एंड इफ सेनेट इज नॉट गोइंग टू अप्रूव इट, तो सेनेट तो उसको कहते हैं सेनेटोरियल कर्टसी, तो सेनेट उसको रिजेक्ट कर देती है और वो नया बंदा लाना पड़ता है। लेकिन अमूमन यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता। 2000 ऑफिशियल के ऊपर तो डायरेक्टली कंसेंट और एडवाइस का प्रिंसिपल है। रिसर्च के अंदर सिर्फ ये लिमिटेशन क्या है, इफ द सेशन इज नॉट देयर ओनली देन यूएस प्रेसिडेंट उसको अपनी चॉइस का बंदा लगा सकता है फॉर द टाइम बीइंग, एंड इफ the appointment of that person is going to be approved by the Senate, तो वो परमानेंट हो जाएगा, अदरवाइज उसको डिसीट होना पड़ेगा अपने डेजिग्नेशन से। और दूसरी है सेनेटोरियल कर्टसी। सेनेटोरियल कर्टसी ये है कि अगर सेनेट इज नॉट गोइंग टू गिव दी अप्रूवल, तो प्रेसिडेंट को फिर नया बंदा लाना पड़ता है। गेट माय आइडिया? और पावर ऑफ रिमूवल भी आपने देखा नहीं है कि जब से ये यूएस प्रेसिडेंट आया है उसके पास इतनी पावर्स हैं कि 3 मरतबा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, इंटरनल सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। तो इसके पास ये बहुत पावर है कि वो अपने ऑफिसर्स को विद उड़ा देता है, अपनी मर्जी के साथ उनको डीसीट कर सकता है, उनको मजबूर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने और इसको द पावर ऑफ रिमूवल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हक में फैसला दिया है कि यस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं अगर, लेकिन प्राइमा फेसी के तौर पे यूएस प्रेसिडेंट सिंस इज द एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, तो उसके पास पावर है कि वो बंदों को डीसीट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो वो क्या होता था, मैंने आपको जैसा कि द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस एंड कंसेंट इज वर्किंग, तो रिमूवर के अंदर भी द प्रिंसिपल ऑफ एडवाइस एंड कंसेंट हैज टू बी वर्किंग। लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसने यूएस प्रेसिडेंट के हक में ये फैसला दे दिया है। और एक बड़ा फेमस केस है जिसको मायर्स वर्सेस यूएस गवर्नमेंट कहा जाता है। ये 1926 के अंदर ये डिसीजन आया था इन फेवर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। यू गेट माय आइडिया गाइस? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेटमेंट कोई पूछना चाह रहे हैं, आई एम ओपन। हाँ बच्चों, कोई इश्यू तो नहीं है? बच्चों आवाज आ रही है? कोई नहीं बोल रहा। सर ये यूएस प्रेसिडेंट के पास तो यूएस प्रेसिडेंट के पास तो पावर है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है जी, लेकिन जो हमारा पीएम है, जो कोई भी पीएम हो, उसके पास भी ऐसा, मतलब यहाँ पर तो डेमोक्रेसी, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो यहाँ पर भी ऐसा अपॉइंटमेंट हो सकता है। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है कि जो वज़ीर आज़म बनता है वो पार्टी लाइटीज की बुनियाद के ऊपर अपना कैबिनेट मिनिस्टर को अप्रूव करता है, मानता है, और वो फिर आपके प्रेसिडेंट उसको ले लेता है, वो अपनी मर्जी से वो ले लेता है। और ये जो अभी रिसेंटली कल क्या हुआ है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो चेंज किए हैं वो वीट एंड शुगर क्राइसिस की वजह से। तो समहाउ ये ट्रेडिशन पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है कि वो इन लोगों को डीसीट कर सकता है। सो इज द केस ओवर देयर। लेकिन वहां के ऊपर वहां की जो कांग्रेस है उसके पास ये राइट है टू सी वेदर ये जो रिमूवल है वो लीगल बुनियाद पे हुई है या नहीं हुई। और इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी आए, और जो केसेस आए तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल इन 1926 में यूएस प्रेसिडेंट की फेवर में ये दे दिया कि सिंस ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव कैन रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द सीट, वो कर सकता है। तो पाकिस्तान में जो कैबिनेट की जो रिमूवल है, नोबडी इज देयर टू मेक प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल। तो ये पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है, आप लोगों ने कल ही देखा है। जोहान, हेलो,
बच्चों नहीं भाई शेरियार आप लेफ्ट ना करें। आप कभी कभी तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? खुदा के लिए यार ओके गाइस, मेरी बात ये समझ आई आप लोगों को? चौहान जो बात कर रहा था मैं, ये बीच में रह गई? सर पाकिस्तान वाली तो नहीं समझ आई है सर, जो आप पाकिस्तान का बता रहे हैं। पाकिस्तान की सफी देखो, अमेरिकन सेनेट के अंदर ये पावर है टू रिव्यू दी यूएस सेनेट कैन रिव्यू दी रिमूवल के वो लीगल बेसिस पे हुई है या नहीं हुई है। ये इश्यूज बहुत आए हैं, लेकिन जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है इन 1926 में वंस फॉर ऑल हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट है कैन रिव्यू दी, वो उसको रिव्यू कर सकती है, ऐसा कोई पावर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में कल ही शुगर एंड व्हीट क्राइसिस के ऊपर 3-4 बंदों की जो पोर्टफोलियोज है उनको चेंज किए हैं, उनको रिमूव किया है अपने पुराने पोर्टफोलियो से। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये जब हम ज्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अभी मैंने पाकिस्तान को इतने बारीकी से नहीं देखा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कोई रेपरकशंस नहीं आए, तो आई पर्सनली बिलीव के कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो वाज द केस विद द यूएस प्रेसिडेंट। उसके बाद जी हेलो, आवाज का बहुत इशू हो, समझ नहीं। ये ना दोबारा लिंक शुरू करते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को वो भेज रहा हूँ।